So, Bismillah Rahman Rahim. Today we're gonna have some little more twists to what we have read. So we upgrade our knowledge today, and there are different things. But those guys who have read Java actually have already these concepts. Okay, where we see the optimizations and immutability concepts and all. Java guys already know that, but if you haven't, so this is gonna be interesting for you guys. So typically, what we said, we just restart our scenario is that our execution in JavaScript doesn't start executing number one before executing any code. We have all the stuff here in the memory. Okay, we said we have the initialization phase where we have all the variables being initialized and all that, and all the environment is being created, which makes this code run smoothly. Not only that it should run smoothly, but we optimize it. So we have all the features done here to optimize it. That is important, right? So typically when we say that we have the memory creation phase, right? We said we have the memory creation phase, and in memory creation phase we do the declaration firstly of all the variables, whatever variables we have, before we start running this code. Okay, we have done the declaration of the variables. Okay, if they are, for example, var x or var y, we just declare there are num1 in case we have the num1. We do the declaration of it. We even initialize them. We not only stop there, we initialize them with undefined, right? So we say num1 is equal to undefined. These both of these things happen in where? In the creation phase, the memory creation phase. And then when you actually execute that code in the execution phase, what you do is we assign these values now. We can say, for example, so we do actual assignment now, right? We can say here the num1 is equal to 200 and so on and so forth, right? And if it is not the var, it is let. If it is let, then we still have the memory creation phase and this execution phase and memory creation phase. And in the memory creation phase, what we do is we do the declaration, right? We do declaration of the num1 and all. We even initialize them, but it's inaccessible because it will be in a script zone. So that's inaccessible, but the undefined num1 is called undefined and all that will be all here, but you can't access that. Later on when you execute it, you actually do what? You initialize it. Okay, and then actually you put up the real values there. Okay, this is how the stuff worked. So if we want to work on this guy, so what will happen with this guy? Can you tell me what will happen with this guy in the creation phase? What is happen if I start writing creation phase for this? Help me in this creation phase. Okay, so what will be in the memory creation phase? What will be the number one step in it? We had num1, we have num2, for example. So in the creation phase, firstly num1 is allocated memory, right? It will be allocated that memory. Okay, and it will store what? Undefined. Undefined, right? Number two, what will happen to the same thing will happen to the num2, right? The num2, the same thing will happen. It will be allocated memory, right? And it will be stored undefined in num2. What about the third thing? Because I'm talking about the lines 1 2 3. Line number 3, these are line numbers. Line number 1, line number 2 happen, line number 3 happens. Okay, what will line number 3 happen? Say for example this call was not here, this was here. Okay, at line number 8. Okay, say for example line number 3 was not there, it was here. So what will happen in the Function code. in fact we should do one thing here. We had done a little wrong here. We should do is equal to here, and we should put it into some variable here, because this now this is returning, this function returns something.
So we should catch it. It will return where it is called. So we should catch it here. Okay. So maybe we have here a variable something. We say where s or sum is equal to, then I call the add num, and it will add me the two numbers, and when it returns back, it will return here. Okay. Now tell me what will be the, if the same scenario happen like this. So what, this is the where s. Now what will happen to with the line number 3, where s, what will happen to line number 3? S undefined. Okay, it will be s will be allocated memory. Okay, allocated memory, और इसमें होगा क्या? Undefined. Undefined. राइट, लाइन नंबर 3 हो गया मेरे पास. अब लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 पे मेरी फंक्शन है, 4 5 6 पे मेरी फंक्शन है. तो उसमें क्या होगा, जो ये मेरी एड नम फंक्शन है, एड नम फंक्शन जो आपका है वो कोड भी सारा अवेलेबल है. अगर आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ आपका एड नम का ये सारा कोड पहले ही मेमोरी के अंदर बैठा होगा. तो इस एड नम फंक्शन को भी मेमोरी एलोकेट की जाएगी. सो वी विल बी एलोकेटिंग दिस मेमोरी टू द एड नम फंक्शन एज वेल. ओके, एंड it stores all its code will be stored. ठीक है, बात समझ आई? तो ये सारा कोड जो भी जितना भी इसका कोड है वो सब स्टोर हो जाएगा. ठीक हो गया. तो इस तरीके से आपका जो है ये है क्रिएशन फेज खत्म होगा. सो अगर क्रिएशन फेज के बाद हमारे पास क्या आएगा? एग्जीक्यूशन फेज. एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा? लाइन बाय लाइन आपका ये होगा, एग्जीक्यूशन हो गया. लाइन नंबर 1, अब जो num1 आपको जिसकी मेमोरी दी थी आपने कहीं पर, वो कहाँ पे देंगे आप? हीप के अंदर, है ना. आज हम इसमें और ट्विस्ट लाएंगे. पहले मैं सिंपली दिखाऊंगा, लेकिन हम कहते हैं num1. अब क्या हो जाएगा इसमें? ये स्टैक है या हीप है? इट हैज़ टू बी स्टैक, राइट? इट हैज़ टू बी स्टैक. ठीक है ना. तो स्टैक के अंदर जो num1 है आपका, उसमें क्या जाएगा? 200. हालांकि ये गलत है, ये चीज़ गलत है. फिलहाल हम ऐसे करेंगे, फिर हम इस चीज़ को अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट है. याद रखना चाहिए, ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो भी जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, दे आर इम्यूटेबल. व्हाट इज़ दैट मीनिंग? अगर आपने जावा पढ़ा है तो आपको पहले ही पता होगा. वहाँ हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. तो यहाँ लेकिन सारे प्रिमिटिव टाइप्स ही इम्यूटेबल है. क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त ऑप्टिमाइजेशन चल रही है. ये सारा ऑप्टिमाइजेशन से आ रहा है. तो वो क्या चीज़ है, हम इसके ऊपर पढ़ेंगे हम अभी. फिलहाल मुझे एग्जीक्यूशन फेज़ बता. एग्जीक्यूशन फेज़ में हो क्या रहा है भाई? एग्जीक्यूशन में फेज़ में पहले जो num1 है उसको असाइन किया जाएगा 200, और दूसरी लाइन चलेगी. अब जब दूसरी लाइन चलेगी, जहाँ पे num2 होगा उसमें भी चला जाएगा 300. ठीक है ना, है ना? ओके. फिर अगर आपने यहाँ पे जो है जो कॉल हमने पहले की थी, अगर वो कॉल बाद में की होती हमने, तो लाइन नंबर 4 जब एग्जीक्यूट होगी तो इसको स्किप किया जाता, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगी जब इसको क्या हो जाएगा, जब मैंने कॉल इट. अगर कॉल बाद में होती है लाइन नंबर 8 पे, तो ये स्किप हो जाता है ये चीज़ें. लेकिन चूंकि अब इसको कॉल है, तो क्या किया जाएगा कि एक फंक्शन का अपना स्कोप होता है. मैंने कहा था आपसे, फंक्शन का अपना क्या होता है? स्कोप. यानी कि जो आपका मेमोरी है, ठीक है ना, और ये मेमोरी फेज़ है जिसमें मेमोरी दी गई आपको सब चीज़ों की वो, और ये एग्जीक्यूशन जो आपका कॉन्टेक्स्ट है. तो ओके, जिसमें कोड आपका लग रहा है, जो कोड आपका है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें मैंने कहा था पहले ही आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है. और उसके अंदर कोई फंक्शन जब बनती है, उसका अपने उसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं. एक तो उसका अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चलता है, लेकिन इसका अपना होता है फंक्शन का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें अपनी वो जो दो चीज़ें थी आपकी कि भाई आप पहले मेमोरी एलोकेट करो और फिर एग्जीक्यूट करो, वो इनके ऊपर भी लागू होगा. अब जो ये वाला फंक्शन है, जब ये फंक्शन चलेगी, इसके ऊपर भी ये लागू होगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं, x है, y है, ये सम है, इनको भी क्या दिया जाएगा? मेमोरी दी जाएगी, एलोकेट की जाएगी. यानी कि फंक्शन जब चलेगी, वो फंक्शन भी, जिस तरह हमने कहा था जो मेन कोड हमारा चला, उसमें आपने मेमोरी क्रिएशन फेज़ किया और एग्जीक्यूशन फेज़ किया. इसी तरीके से आपका फंक्शन का भी जो है, उसमें आपका 2 फेज़ चलेंगे उसमें भी, और उसमें भी 2 आपके ये होंगे जो फंक्शन आपके हैं. जो ऐसे मैंने हमने
वो यहाँ पे लिखा था मैंने इसमें कहीं पे, हाँ यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था वो कहीं पे, मैं देखूँगा वो मैंने लिखा था कहाँ पे। ये तो वेरिएबल्स हो गए, हाँ ये फंक्शन हो गई, फिलहाल कर में सिंक्रोनस है, जै सिंगल थ्रेड है, फंक्शन हो गई, ये थ्रेड है। हाँ ये देखो फंक्शन में मैंने आपसे कहा था उसका अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है और लोकल या फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। यानी कि यहाँ पे आप इसको ड्रा करेंगे, ये फंक्शन है एफ, फंक्शन का खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है और इसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन का अलग रहता है। रनिंग कोड का अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है ही है, लेकिन फंक्शन का इंटरनली वो ग्लोबल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बैठ के, क्योंकि आपके जो मेन कोड चल रहा था उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आपका फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट होगा। इसका एड्रेस हम देखेंगे जो स्नैपशॉट हम देखेंगे एड्रेसेस, वो में भी हम कल करेंगे उसके बारे में काम, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, डेव टूल्स में। अब यहाँ पे जो इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, फंक्शन का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बाहर होगा, ठीक है ना, इस फंक्शन के, because when it finishes it has to come back to the global context, और जब when it runs it will run its own execution context, जहाँ पे आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पहले मेमोरी खड़ी करनी है। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो अगर हम अपने कोड पे आ जाएंगे, कोड कहाँ है हमारा, ये ठीक है। अब हम अपने कोड पे आ जाएंगे। तो जब हम इस एग्जीक्यूशन फेज़ में, मैंने एक एग्जीक्यूशन फेज़ शुरू किया था इसका, है ना, हमने इसका एग्जीक्यूशन फेज़ शुरू किया था कि जिसमें हमने पहले स्टेप में num1 को 200 दे दिए, फिर num2 को 300 दे दिए, और लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। उसमें num1 को मैंने 200 दे दिए और जो num2 है उसको मैंने 300 असाइन किए थे। अब लाइन 3 पे जब आप कॉल कर रहे हो, लाइन 3 पे आप क्या कर रहे हो, कॉल, अगर आपका लाइन 3 पे कॉल है तो फिर यानी कि वो उसको तो जाना है यहाँ पे, उसको तो यानी कि अब वो ये फंक्शन कॉन्टेक्स्ट शुरू कर देगा अपना, ठीक है। तो इन्वोक हो जाएगी, तो लाइन 3 पे जो है इन्वोक हो जाएगी आपकी फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम है एड नम। तो एड नम जो फंक्शन है वो इन्वोक हो जाएगी लाइन नंबर 3 पे, जब आपकी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज इट्स कॉलिंग टू दिस। यानी कि जब आपकी फंक्शन इन्वोक हो जाएगी तो ये क्या करेगी काम, जब ये इन्वोक हो जाएगी ये एक नया फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा इसके अंदर। जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था उसके अंदर फंक्शन के लिए अपना एक अलग से, सो दिस विल इन्वोकिंग दिस फंक्शन विल डू व्हाट, it will create what, it will create a new एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट function execution context, execution context, yes, execution context। तो फंक्शन का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक हो गया, ये एग्जीक्यूट करेगा अपना। और जब फंक्शन का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा उसका अपना क्रिएशन फेज होगा और उसका अपना क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज। जैसे हमने कहा ना क्रिएशन फेज एग्जीक्यूशन फेज, लेकिन जब फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल हो जाती है, पहले कॉल स्टैक पे वो फंक्शन आ जाती है आपको, वो हम देखेंगे डेव टूल्स में, वो उसका कॉल स्टैक में वो आ जाएगा उसका फंक्शन का ये, लेकिन उस फंक्शन का अपना लगेगा क्रिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज। लेकिन अब ये जो क्रिएशन फेज है ये फंक्शन का है, ये जो फंक्शन हमने कॉल की उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको लगेगा क्रिएशन फेज, और जब ये फिनिश हो जाएगा तब जाके आपका जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसका लगेगा एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। जिस तरह हमने ओवरऑल कहा था कि भाई साहब आप जब कोड रन करोगे तो उसमें पहले आपको क्रिएशन फेज लगेगा फिर एग्जीक्यूशन फेज लगेगा, लेकिन अब जब चलते चलते आपको फंक्शन मिली तो फंक्शन का अपना वही चीज़ होता है जो आपने मेन कोड को किया, उसमें भी क्रिएशन फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज होता है। अब जो उसका क्रिएशन फेज है ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का क्रिएशन फेज है, और ये जो एग्जीक्यूशन फेज है ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एग्जीक्यूशन फेज है। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि
पहले जब हमने किया था कोड शुरू किया था कि मैंने कहा था आपके आपके इसमें दो फेज लगेंगे, एक तो आपका क्रिएशन फेज और आपका एग्जीक्यूशन फेज। लेकिन जब आपने एग्जीक्यूट करना चालू किया, जब आपने एग्जीक्यूट करना चालू किया और आपको फंक्शन मिल गई, उस फंक्शन के अंदर, जैसे ये फंक्शन है वो, ठीक है ना, इस फंक्शन के अंदर आपको उसका अपना क्रिएशन फेज और अपना क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेज लगेगा। तो अब हम इस फंक्शन के क्रिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज की बात करेंगे। ठीक हो गया? यानी कि जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये वाला चीज़ जो है, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये वाली चीज़, ठीक है ना, उसके अंदर इसका क्रिएशन फेज और इसका एग्जीक्यूशन फेज। अब ये फंक्शन का, ये जो बाहर वाले डब्बे थे ये ओवरऑल प्रोग्राम का था, ये ओवरऑल जो प्रोग्राम मेरा था उसका क्रिएशन फेज और उसका एग्जीक्यूशन फेज था। अब मैं फंक्शन के अंदर जब चला, उसका अपना क्रिएशन फेज एग्जीक्यूशन फेज होगा। लेकिन जो ये क्रिएशन फेज है, अब ये क्रिएशन फेज जो है, ये किसका क्रिएशन फेज है? फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। तो उसमें क्या होगा, पहले जब पहली लाइन होगा, पहली लाइन कौन सी चलेगी उसमें, बेसिकली उसमें लाइन नंबर 4 चलेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा उसमें, num1 और num2, जो num1 है, मैं n1 लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और num2, चलो पूरा लिखता हूँ मैं, num1 एंड num2 जो आपका है, उनको एक तो एलोकेट की जाएगी मेमोरी, मेमोरी एलोकेट की जाएगी, और अनडिफाइंड उसमें रखा जाएगा, जैसे आपने उनके साथ किया है कि नहीं। अच्छा, अब लाइन नंबर फिर चलेगी आपकी 5, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 में क्या चलेगा, सम, जो आपका सम है उसको एक तो मेमोरी दी जाएगी और उसमें अनडिफाइंड रखा जाएगा। सेम प्रोसेस जो हमने की थी वो इसके साथ भी चलेगी। ठीक हो गया? ओके ओके, ये तो ये क्रिएशन फेज में होगा। जब इसका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो आपका है उसका अब लगेगा एग्जीक्यूशन फेज। ठीक हो गया? अब इसके एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? पहले लाइन नंबर 3 चलेगी, अब चलेगी ना, अब होगा ना एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर, नहीं लाइन नंबर 4 था, लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट में क्या हो जाएगा, अब जो num1 है और num2 है, क्योंकि जब आप कॉल कर रहे थे num1 आप भेज रहे थे वो x एंड, ये थोड़ी ना, ये x एंड y है, सॉरी आप मुझे करेक्ट करो ना, मैंने गलत करा था, ये x एंड y है। जब फंक्शन यहाँ से शुरू है ना, फंक्शन यहाँ से शुरू है लाइन नंबर 4 से, लाइन नंबर 4 में हमारे पास x एंड y है, तो x एंड y को मेमोरी दी जाएगी और अनडिफाइंड किया जाएगा। अब इस x के अंदर ये num1 घुसेगा ना जब कॉल आपने की, और ये num2 घुसेगा y के अंदर, क्योंकि आपने कॉल जब की आपने ये दो वेरिएबल्स भेजे इस फंक्शन को। In num1 will be copied into x, num2 will be copied into y. In other words, 200 will be copied into x and 300 will be copied into y. और वो चीज़ एग्जीक्यूशन में हो जाएगा, x में 200 चला जाएगा और y में 300 चला जाएगा। और फिर लाइन नंबर 5 चलेगी। लाइन नंबर 5 में क्या हो रहा है, सम निकल रहा है, और सम के अंदर 300 प्लस 200 500 एग्जीक्यूट होके आ जाएगा, तो उसमें 500 घुसेगा। हो गया ठीक? उसके बाद आप रिटर्न कर रहे हो, सो रिटर्न में क्या होगा, कोई बताएगा? लाइन नंबर जो आपका 6 है जिसमें रिटर्न हो रहा है, रिटर्न में आप वापस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हो, क्योंकि जब आपका फंक्शन कॉन्टेक्स्ट था ये इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था। ये रिटर्न जब आपने इस फंक्शन से की, इट गो बैक टू द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जो इस फंक्शन का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, यानी कि जहाँ से इसको कॉल आई थी, ठीक है ना, इसको कॉल जहाँ से आई थी वहाँ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा काम, ये यहाँ पे 500 लेके वापस जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, फंक्शन के बाहर, और वहाँ आपको यहाँ वेरिएबल एक रखना है कोई, जैसे s मैंने कहा, तो उस s के अंदर ये 500 चला जाएगा। ठीक हो गया? समझ में आ रही बात? क्लियर? हाँ जी। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है जो आपको समझना है, वो ये समझना है आपको कि पहले हम इसका जो हमारे पास इंजन आपका जो है वो काम कैसे करता है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन है इसका आर्किटेक्चर आप देख लें पहले। जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है उसका स्ट्रक्चर देख लें आप। ये रहा आपका उसका स्ट्रक्चर, कि वो आपको आप सोर्स कोड जो है उसको दे रहे हो, ये रहा सोर्स कोड, जो ना आप जो भी आप चीज़ उसको दे रहे हो सोर्स कोड। ये जो सोर्स कोड आपकी है
ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इनफैक्ट इज़ अ हायर लेवल लैंग्वेज, नॉट इवन हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी C++ वगैरह आती हैं, इट कम्स इन अ हायर लेवल लैंग्वेज। सो ये आपकी हायर लेवल लैंग्वेज है, नम 1 है नम 2 है। कंप्यूटर को थोड़ी ना समझ आएगा ये, कंप्यूटर को तो 0 1 समझ आता है, उसको मशीन कोड समझ आता है। सो अल्टीमेटली जो आपका चीज़ है, ये जो सारी चीज़ हैं ये आपको कन्वर्ट करनी है इंटू मशीन कोड। इसीलिए तो आपको कंपाइलर होता है या आपके यहाँ पे इंटरप्रेटर है। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो आपका है, उसका काम यही है कि वो इस पहले इस जावास्क्रिप्ट इंजन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। कि हमारी पास जो मशीन है, मानो ये मशीन मेरा कंप्यूटर है या मेरा मोबाइल फ़ोन है। अभी मोबाइल फ़ोन पे चलने वाली है ये चीज़, ये साइट, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, जिस डिवाइस पे आप चलाना चाहते हो उसके अंदर बैठा है प्रोसेसर, ठीक है। और वो प्रोसेसर जो है वो सेम टाइप का नहीं होता। आपके जो क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल फ़ोन है, उसका प्रोसेसर टोटल डिफरेंट है, उसका आर्किटेक्चर टोटल डिफरेंट है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ठीक है ना। पहले मैं समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं बोलना यह चाहता हूँ कि ये मानो एक रेसिपी है, ये रेसिपी है हलवा बनाने की, हम हलवा बना रहे हैं, ठीक है। अब हलवा जब बना रहे हैं, मैंने रेसिपी लिखी, क्या लिखा मैंने कि भाई आप सूजी लाओ, आप घी लाओ, आप देसी घी लाना, आप ये शुगर लाना, वो ये इंस्ट्रक्शंस है। फिर उनको बॉयल करना, फिर वो ये वगैरह वगैरह। लेकिन बनने वाली कहाँ है, किसी किसी के किचन में। मतलब फर्ज मैंने इफ़ला को दिया, इफ़ला के पास ओवन है, ठीक है। और मैंने ये रेसिपी दी दूसरे बंदे के पास, से फॉर एग्जाम्पल इरफान के पास दी, और इरफान के पास ओवन है नहीं, उनके पास इंडक्शन है जिस पे वो करने वाले काम। अब जब मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर को तो पता, कॉमन सेंस तो है नहीं उसको, कंप्यूटर को, कि भाई मेरे को हीट करना है 5 मिनट्स। अब इसके पास अवन है, अवन के पास अलग तरीके से हीट होगा, उसको अलग बर्तन लगेंगे, उसके अलग चीज़ें होंगी। लेकिन जो इंडक्शन है उसमें अलग तरीके से हीट होगा। और जो बर्तन जो जहाँ पे जो चीज़ें इफ़ला के किचन के अंदर हैं, वो मैं इसके इरफान के किचन के अंदर है नहीं। तो इफ़ला के किचन में टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर है, और जो इरफान है उसके किचन में टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर है। अब अगर मैंने रेसिपी को कन्वर्ट किया, जो ये रेसिपी कन्वर्ट है उसको किचन के हार्डवेयर के हिसाब से मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है ना। जैसे हम कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मैंने इस रेसिपी को किचन के हिसाब से कन्वर्ट किया। लेकिन अगर मैंने अवन के हिसाब से किया, मैं सिर्फ एक चीज़ दे रहा हूँ, वहाँ हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं जो डिफरेंट है इरफान के इससे। बात समझ आ रही। ये इरफान है, डैम, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इरफान एंड दिस इज़ इफ़ला। अब इफ़ला के किचन में टोटल डिफरेंट आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर है, और इरफान के किचन में टोटली डिफरेंट हार्डवेयर है। तो जो रेसिपी में कंपाइल करके या इंटरप्रेट करके इसको इस हार्डवेयर के मुवाफिक बना रहा हूँ, वो तो चलेगी नहीं इफ़ला के अंदर। तो यानी कि मुझे हार्डवेयर देखना पड़ेगा। और वही होता था C++ के साथ। जो C++ है, आप क्या करते थे काम, आपको मेरी बात समझ आ रही है, एवरीबडी विद मी। जो आपका C Yes, sir. या C++ का कोड होता था, आप कोड लेते थे सारा, आपने जितना भी उसका कोड था, सोर्स कोड था, जितना भी सोर्स कोड आपने लिखा है, आप क्या करते थे काम, आप वो कंपाइलर को देते थे। फिर उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब कंपाइलेशन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो कभी उसमें 1 घंटा लगेगा पढ़ाने में ही कि क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कंपाइलर के जो आप क्या करते थे काम, क्योंकि आपका एम था कि जो ये सी का कोड है, वी वांट टू कन्वर्ट इनटू जीरोज वंस 1 0, जो कि मशीन को समझ आ जाए, क्योंकि मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज। इसलिए बीच बीच में कंपाइलर। लेकिन कंपाइलर जो आपका है वो खाली काम नहीं करता, उसके साथ असेंबलर भी होता है। असेंबलर एक साइड में हार्डवेयर को देखता है, ठीक है। इसकी एक साइड हार्डवेयर के ऊपर नज़र है कि मेरा हार्डवेयर कैसा है, क्योंकि चलना इस कोड को इस हार्डवेयर पे है। सो ये कोड उस मुवाफिक होना चाहिए जिस किस्म का यहाँ पे प्रोसेसर होगा, जिस किस्म की यहाँ पे रैम होगी, और मेन चीज़ जिस किस्म का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को, 2 × 2 आपको करना है। लेकिन एक मशीन है उसके पास मल्टीप्लायर है ही नहीं, उसके पास एडर है। और दूसरा बंदा है उसके पास सीधे मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर यूनिट है उसको। जब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए इस मशीन को देते हो, ये इसको 2 + 2 इस तरह प्लस के तरीके से करता है। सर 2 × 4 आपको करना है, ये करेगा 2 + 2 + 2, क्योंकि इसके पास एडर है। लेकिन ये जो बंदा है इसके लिए ये प्लस प्लस नहीं करना है, इसको 2 × 4 करना है, ये आंसर देगा आपको 8।
तो जिस किस्म का हार्डवेयर होगा उसी किस्म की यहाँ पे जो एज ए प्रोग्रामर आपने लिखा एक लाइन 2 into 4, लेकिन ये कन्वर्ट करना है एज पर द आर्किटेक्चर। ठीक है ना, आपको समझ आ रही है? मेरी तरफ देखो आप, वेयर आर यू गाइज विद मी और नॉट? आर यू गाइज विद मी व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. यू लुक एट मी, मैं 2x4 करना चाह रहा हूँ एज ए प्रोग्रामर। मैंने एक कोड लिखा 2x4, मुझे क्या पता अब क्या मसला आ गया है, लेकिन आगे जो मशीन है मेरे पास उसके पास एडर है, लेकिन जो दूसरे के पास मशीन है उसका मल्टीप्लायर है। तो जो कंपाइलर है उसने कन्वर्ट किया कि 2+4 भाई ऐसा होता है, लेकिन वो कंपाइलर थोड़ी ना मशीन लैंग्वेज बनाएगा, लेकिन वो बोलेगा कि इस तरीके से करना है। लेकिन वो किसको बोलता है? वो असेंबलर को। असेंबलर देखता है हार्डवेयर को एक साइड में, राइट साइड से, जो वो हार्डवेयर के ऊपर देखता है वो बोलता है पाजी ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन असेंबलर को पता है कि अंदर मेरे पास बैठा है एडर, तो वो इसको ऐसे नहीं करेगा, तो मुझे वो कन्वर्ट करता है उसको किस हिसाब से? 2+2+2+2, इसी चीज़ को जो आपने लिखा। लेकिन जो असेंबलर बैठा होगा दूसरी मशीन के साथ जहां मल्टीप्लायर यूनिट है, तो वहां वो कन्वर्ट करता है 2x4, सीधे 2 और 4 दे दो मल्टीप्लायर को, निकालो आंसर। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे, अगर हम देखेंगे, मेरा स्क्रीन शेयर ही है, हाँ, अगर हम देखेंगे कि मैं दूंगा 2x4 मैंने लिखा, ठीक है ना, और अगर मैंने दिया ये, मैंने ये कन्वर्ट किया इस हिसाब से 2x4 के हिसाब से, लेकिन ये कहाँ पे चलेगा? सिर्फ इस मशीन पे जिसमें मल्टीप्लायर यूनिट है। क्या ये इस मशीन पे चलेगी जिसमें एडर है? नहीं चलेगी। तो मुझे अलग से दूसरा कंपाइलेशन करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए ये इंटेल का सिस्टम है, ये मैकिन्टोश है, ये मैक है, ये AMD का सिस्टम है, तो मुझे हर आर्किटेक्चर, ये मैं एक छोटी सी बात समझा रहा था, लेकिन आर्किटेक्चर तो टोटली डिफरेंट है ना हर मशीन का। ठीक है, जो भी आपके मशीन है, आपका मैकिन्टोश है, मैक एप्पल वाले का, एप्पल वाले की जो मशीन है वो टोटली डिफरेंट है, उसका टोटल आर्किटेक्चर डिफरेंट, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंट, हार्डवेयर अलग। जो आपका इंटेल की मशीन है वो टोटल अलग, जो आपकी AMD का प्रोसेसर है वो तो टोटली अलग। तो यानी कि एक प्रोग्रामर जो C++ में कोड लिखता है उसको अलग अलग कंपाइलेशन करनी पड़ेगी, मैक के हिसाब से अलग, इसके हिसाब से अलग, इसके हिसाब से अलग। तो ये तो परेशानी हो गई। तो हमारा जो होता था सोर्स कोड, हम उसको कंपाइलेशन करते थे अलग अलग हिसाब से, और हमने 15-20 रखी होती थी, तो फिर जितनी मशीन उनके लिए अलग अलग हमारे पास EXE बनती थी। ये मैक वाली EXE है, ये भाई इंटेल वाली EXE है, ये वाली इसकी। तो हमने कहा भाई ये तो परेशानी होगी प्रोग्रामर के साथ, कितने का ख्याल रखूँगा मैं। और यहाँ तो हर मशीन डिफरेंट आजकल है, यहाँ मोबाइल फ़ोन्स आ गए, हर के मोबाइल फ़ोन्स डिफरेंट है। अब तो फिर तो जावा स्क्रिप्ट को तो ज़्यादा ही मुसीबत है, क्योंकि उनको तो वेबसाइट चलानी है मोबाइल डिवाइस पे। जो हर दूसरी कंपनी आजकल मोबाइल डिवाइस बनाते हैं उनका टोटल डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है, कोई चाइना से आता है, कोई जापान से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है। ठीक है, तो फिर जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा थी, उसने कहा यार तू एक काम कर, जब तेरा सोर्स कोड है ना, जो तेरा क्या है सोर्स कोड, तो एक काम कर, तू ऐसा मत करना कि तू ये कर रहा है कि तू इसको एग्जीक्यूटिबल बना रहा है, तो एग्जीक्यूटिबल मत बना, तू एज ए प्रोग्रामर बाइट कोड बना। क्या बना? इंटरमीडिएट। तो एग्जीक्यूटिबल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मतलब है कि आप उसको मशीन लैंग्वेज बना रहे हो 0-1 हिसाब से, वो मशीन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी उस मशीन के हिसाब से जो मशीन का आर्किटेक्चर है। अगर आपने एक बार वो बना दी तो वो सिर्फ इस मशीन पे चलेगा, क्योंकि ये इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी है। जैसे मैंने कहा हलवा बनाऊंगा इफला के किचन के हिसाब से, तो जो अगर मैं वो कन्वर्शन करूंगा उस रेसिपी का कि वहाँ अवन लाना है, वहाँ वो चीज़ें हैं, वहाँ ये चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल, तो वो तो थोड़ी ना चलेगी दूसरे के किचन पे, वहाँ तो डिफरेंट आर्किटेक्चर है। बात समझ आई? वहाँ डिफरेंट हार्डवेयर है। तो हम प्रोग्रामर को क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप जब कोड लिखते हो, आप एक काम करो, आप एक बाइट कोड बनाओ जो कि जनरल पर्पस होगा। ये मशीन कोड नहीं है, इंटरमीडिएट कोड है। ये एग्जीक्यूटिबल EXE की तरह एग्जीक्यूटिबल कोड नहीं है, ये आपका बिल्कुल वो 0-1 मशीन कोड नहीं है जो कि हार्डवेयर के मुवाफिक होगी। जब आपने बाइट कोड बनाया, फिर हम आपको बोलते हैं कि आपने बाइट कोड बनाया, बीच में आपका जो फॉर एग्जांपल abc.js है, जावास्क्रिप्ट का फाइल है, या .java थी आपको, तो आप या PHP थी या पाइथन के अंदर, या तकरीबन हर लैंग्वेज में आजकल ये होता है, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जो हायर लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं, वो बनाती हैं बाइट कोड उसका। ठीक है ना, वो बाइट कोड हम देते हैं उस मशीन को, और उस मशीन में जैसे जावा है तो वहाँ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है,
उसमें अपना असेंबलर होता है, वो देखता है बाइट कोड और कन्वर्ट करता है उसी मशीन के हिसाब से उधर ही। और फिर जो अगर इंटेल की मशीन है वो इंटेल को हम देंगे ये बाइट कोड, वो इंटेल वाली अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करती है। इसी तरीके से हमारे पास AMD की मशीन है, ये AMD को बाइट कोड देंगे तो वो अपने हिसाब से करती है। तो इस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, हम कहते हैं राइट वंस। इसका डायलॉग ये होता है कि राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, तो हाँ, क्यों क्योंकि हमने बाइट कोड बनाया, वो बाइट कोड वो जनरल पर्पस कोड है, वो किसी हार्डवेयर के हिसाब से नहीं है। जो एग्जीक्यूटिबल कोड था EXE जो हम बनाते थे, वो EXE अब ये वाली यहाँ बनाएंगे अपने मशीन पे। तो उसमें कोई एज ए प्रोग्रामर अब मुझे एक ही बाइट कोड बनाना है, जो मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा उसका एक ही बाइट कोड होगा। मुझे परेशानी नहीं है कि वो किस मशीन पे चलने वाला है। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो ये बाइट कोड का काम है। बाइट कोड समझ गए? बाइट कोड में कोई कंफ्यूजन किसी को? Anybody having any issues with the bytecode? One second. Anybody having issues? Tell me. Everybody with me? Are you guys with me? Yes, sir. Yes, sir. बाइट कोड आ गया समझ के? नहीं आ गया समझ? जी सर। Yes, sir. तो अब हम, अगर आपको बाइट कोड समझ आ गया तो फिर हम इसका करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गए हम कहाँ पे लिख रहे थे? अच्छा, हम यहाँ पे हवा में लिख रहे थे, ठीक है। वाई वी राइट इन एयर, वाई डोंट वी राइट इन दिस, सो दैट हमें फिर ये याद रहेगा ना नेक्स्ट डे पे। हम ये कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट का इंजन है। अब ऑप्टिमाइजेशन और जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको समझ आना चाहिए आज। ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी चीज़ें तो डेटा सब पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता कि चीज़ें क्या है। जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है उसको आप पहले क्या करते हो काम, आप उसको सोर्स कोड दे रहे हो। क्या दे रहे हो? सोर्स कोड। अब इसके पास एक पार्सर होता है पहले, जिसको पार्स करता है। ये आप अगर आपको कंपाइलर डिज़ाइन MCA करोगे वगैरह, वहाँ पे आपको कंपाइलर पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पे ये है, मेरा फुल एक प्लेलिस्ट लिस्ट है कंपाइलर डिज़ाइंस का, उस पर आप ये देख सकते हो इसकी डिटेल्स पूरी। और यहाँ पे पहले किया जाता है काम, वी कन्वर्ट दिस कोड into an abstract syntax tree. This is called abstract syntax tree. ठीक है, AST शॉर्ट में रहा है। इन डिटेल नहीं जाऊंगा, ये कंपाइलर डिज़ाइन का कोर्स है, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वो प्लेलिस्ट खोल के वो देख सकते हो, उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके हैं। अच्छा, अब आपको जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना, ठीक है ना, तो एक साइड से फिर आपको मेमोरी दी जाएगी यहाँ से, ओके। और जो आपका कोड, फिलहाल आपका कोड है, उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाया गया, उसके बाद उसको मेमोरी दी गई, वहाँ पे स्टैक आपको मिला, आपको हीप मिला, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आपका इंटरप्रेटर आएगा, यानी कि अब आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो इसको, ठीक है। अब जब आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो आपका इंटरप्रेटर जो है वो वजूद में आएगा, वो काम करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर बड़ा स्लो चीज़ है, ये आपका बहुत स्लो है, क्योंकि एक एक लाइन करना है, बहुत स्लो है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्टिमाइजेशंस होती है। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, साथ साथ इंटरप्रेट करने के साथ साथ वहाँ पे हमें इन पैरेलल चलता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है ना। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT, ये करता क्या है, इट डज द कंपाइलेशन। ये सीधे कंपाइल करता है, बहुत सारे कोड को कंपाइल करके खुद कंपाइल करता है एक साथ, और साथ साथ क्या करता है, ऑप्टिमाइज भी करता है। ऑप्टिमाइज एंड ऑल्सो कंपाइल। और ये बड़ा ऑटोमेटिक कंपाइलेशन करता है, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करता है, और ये देखता रहता है कि इंटेलिजेंटली कि मैं किसको कंपाइल कर सकता हूँ, कहाँ मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, और उसमें वो सारी चीज़ें करता है। उसके बाद चाहे आप यहाँ से ऑप्टिमाइज से आए या चाहे इंटरप्रेट से आए, तो उसका बाइट कोड बनेगा। उस चीज़ का क्या बनेगा, बाइट, जो जनरल पर्पस है, मैंने बता चुका हूँ आपको।
अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से आए, यहाँ से आए, आपका बाइट कोड बनेगा, और जो बाइट कोड आप जो है इसको फिर आप जो रेंडरिंग इंजन आपका है वो इस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड। ठीक हो गया। अब ये मशीन कोड दिया जाएगा प्रोसेसर को, सीपीयू को, क्योंकि ये मशीन कोड बिल्कुल 0101 और ये बिल्कुल इसी प्रोसेसर के मुआफिक होगा एज पर द हार्डवेयर। ठीक है ना। सो द मशीन कोड विल बी द एग्जीक्यूटेबल कोड, इट विल बी एग्जीक्यूटेबल कोड मीन्स इट कैन रन ऑन दिस मशीन। ठीक हो गया, बात समझ आई। सो ये आपका जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है आपके जावास्क्रिप्ट इंजन का। अब जो ये ऑप्टिमाइज़ करता है या कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है, इसमें हज़ारों चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो अभी इनिशियली पढ़ना, जब हम मेमोरी की बात कर रहे थे और डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे, तो डेटा टाइप्स के अंदर हमारी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। पहली बात ये कहता है कि भाई जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने भी आपके पास है, चाहे वो बूलियन है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर है, वो सब इम्यूटेबल है। अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इम्यूटेबिलिटी, वहाँ स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, वहाँ पे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती हैं, इसलिए हम स्ट्रिंग बफर क्लास फिर इस्तेमाल करते हैं अगर आपको ज़्यादा चेंजेस आ रही है। अगर नहीं पता तो वो समझेंगे यहाँ पे। फिलहाल तो यहाँ पे सारे ही आपके पास इम्यूटेबल है। यानी कि मैंने आपसे कहा था कुल मिला के कि जैसे अगर हम कोड के ऊपर आ जाएंगे अपने, यहाँ पे ये जो कोड मेरा है num1 num2 मैंने कहा हुआ है, ठीक है ना। अगर मेरे पास और भी चीज़ें हैं जैसे इसमें, फिलहाल हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, आई जस्ट डिलीट दिस। ओके, ये इसको भी num2 को भी मैं 200 दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है ना। मेरे पास एक वैर टी है, उसको मैं रख रहा हूँ अंदर ट्रू। ओके, वैर टी टी दूसरा है, इसको भी मैं रख रहा हूँ ट्रू। ठीक है, वैर ट्रिपल टी है, इसमें भी रख रहा हूँ मैं ट्रू। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैर, ये वैर नहीं, लेट कर लो, कांस्टेंट कर लो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन होगी। मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेम, ओके, इक्वल्स टू, इसमें डाल रहा हूँ मैं जुनैद। ओके ओके, मेरे पास एक और वैर है, उसमें नाम है मेरे पास इक्वल्स टू इकबाल, नहीं जुनैद ही डाल रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, मैंने आपसे बताया था कि भाई साहब कंट्रोल है कि मैंने आपसे कहा था कि जनाब जब आप मेमोरी दे रहे हो तो पहले आपको मेमोरी दी जाती है। ठीक है, एक मेमोरी दी जाती है चीज़ों को, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। और मेमोरी के अंदर मैंने कहा था आपको एक स्टैक होता है और एक हीप होता है। ठीक है ना, एक स्टैक होता है, आपके पास एक हीप होता है। मान लीजिए ये आपका स्टैक है, ये आपका हीप है, और ये आपकी मेमोरी है, और फिर आपकी एग्जीक्यूशन चलती है इसकी। और उसमें हमने कहा कि जैसे num1 है, तो num1 जो यहाँ पर है ये वेरिएबल दिया जाएगा, इसमें अनडिफाइंड होगा। फिर num2 होगा, यकीनन इसमें अनडिफाइंड होगा। फिर t होगा, फिर tt होगा। फिर आपके पास अगर हम, मैं इसको डिलीट करूँगा फिलहाल, मैं लिखूँगा कि num1 है। ठीक है ना, ये कहाँ पे होगा, स्टैक के अंदर होगा ना। ये num1 है, ये मेरा num2 है स्टैक में, ये मेरा t आ गया, फिर tt आ गया, स्टैक बुल्ड हो रहा है मेरा। फिर ट्रिपल t आ जाएगा, और फिर उसके बाद नेम आ जाएगा, और उसके बाद ये मानो नेम 2 है। हाँ? ये नेम 1 था, ये नेम 2 है, या माई नेम इसका नाम है, माई नेम। तो नेम के बाद माई नेम आ गया। ठीक है, पहले इनिशियली इन सब के पास क्या होगा, अनडिफाइंड है ना। जी सर। फिर जब एग्जीक्यूट करोगे तो अब क्या होगा इनके अंदर, num1 में क्या होगा, num2 में क्या होगा, और ये हीप, ये है ना, ये स्टैक के अंदर ये सारे हैं बिना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ना, सारी स्टैक इसमें, ये सब के सब स्टैक में है। तो बोलो क्या होगा इनके अंदर जब एग्जीक्यूट, अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, व्हाट विल बी इन द num1, वैल्यूज। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज रॉन्ग। इनमें वैल्यूज नहीं होती बल्कि एड्रेसेस होते हैं। इट विल बी एट द रेट, है एट द रेट से हम एड्रेस दिखाते हैं यहाँ पे, इसमें सब में एड्रेसेस होंगे भाई साहब, वैल्यूज़ नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है।
हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और हम ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कहते हैं कि मेरे ये सारे वेरिएबल जो प्रिमिटिव हैं ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब ये होता है कि अगर आपके पास नम 1 में है ना 200, अब इसमें चेंज नहीं ला सकते हो। नम 1 में 2 आपका डालना चाहते हो, नम 1 में 300, ये नहीं पॉसिबल है, जबकि है पॉसिबल लेकिन इम्यूटेबल है। तो वो क्या मसला है वही समझना है हमें। हम टेक्निकली इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि टेक्निकली कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर चेंज नहीं कर सकते फिर तो हम कर सकते हैं ना, वेरिएबल नम 1 इज इक्वल टू 300 रख सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते। जी सर। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई ये इम्यूटेबल है, ये नहीं कर सकते चेंज। वही चीज़ हमें समझनी है कि उसका मतलब क्या। अगर हम चेंज कर पा रहे हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं इम्यूटेबल, और ऑप्टिमाइजेशन कैसे है वो। इसीलिए हमने जो स्टैक के अंदर जो चीज़ें डाली हैं अपने प्रिमिटिव टाइप्स, जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, वहाँ पे यहाँ एड्रेसेस होते हैं। अब एड्रेसेस से क्या होगा, एड्रेसेस से ये होगा कि मेमोरी के अंदर हमें जुनैद है, ये हम अलग मेमोरी देते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। ये जुनैद है वहाँ पे, इसे हम कहते हैं फ्री पूल। क्या बोलते हैं? फ्री पूल। क्या बोलते हैं? इस मेमोरी को हम फ्री पूल बोलते हैं। हालांकि हीप एरिया हमारा अलग है, हीप एरिया जो हमारा है वो अलग है, वो ऑब्जेक्ट्स के लिए है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे है। और अगर उनके रेफरेंसेस हैं वो इनफैक्ट स्टैक के अंदर ही होंगे। ये स्टैक है आपका, वो स्टैक के अंदर ही होंगे। अब समझो मज़े की बात क्या है कि जो फ्री पूल के अंदर आपने जुनैद खड़ा कर दिया कहीं पर स्ट्रिंग, यानी कि नेम का रखा। अब फ्री पूल में ये जहाँ पे होगा उसका जो एड्रेस है, वो एड्रेस जो है वो इस नेम के अंदर यहाँ पे होगा, दैट मीन इट इज लोकेटिंग टू दैट फ्री पूल। अब जब आपने दूसरी स्ट्रिंग बनाई ये माई नेम करके, और उसमें आपने क्या डाला, फिर से जुनैद डाला ना, जी सर। अब फिर से जुनैद। अब क्या हो रहा है काम कि ये जो माई नेम है ये फ्री पूल में ढूंढेगा पहले, कहीं जुनैद तो है नहीं, हाँ जुनैद तो है, तो ये इसी बंदे को पॉइंट करेगा, ये नया वेरिएबल नहीं बनाएगा। एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो फॉर दीज गाइज, कि फ्री पूल के अंदर 200 आपने बनाया नम 1 के लिए, तो इसका एड्रेस है 200 का, फ्री पूल का एड्रेस नम 1 के पास, ठीक है। अब जब नम 2 आपने बनाया, वो जनाब फ्री पूल में देखेगा 200 तो ऑलरेडी है, तो इसी के साथ पॉइंट करो। तो जो भी आपके जैसे ट्रू है, मैंने कहा T1 में क्या है, टी में ट्रू है, सो ट्रू आपके फ्री पूल में होगा, किस में होगा, फ्री पूल में, और T इज पॉइंटिंग टू दैट, एंड TT इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दैट, एंड T इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दैट, क्योंकि ट्रू वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी है। अब ये अलग अलग बंदे को ट्रू 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 नहीं देगा, या यहाँ स्ट्रिंग जुनैद एक के पास है, अब ये अलग जुनैद नहीं बनाएगा, इन दोनों को देगा। इस तरीके से नंबर 200 है, ये 200 नम 1 को भी और नम 2 को नहीं देगा, ये एक ही बंदा होगा और पॉइंट कर रहे होंगे फ्री पूल में उसी के साथ। अब मसला है कि मैं नम 1 को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसको एक मिनट फिलहाल इरेज करेंगे, हम सिर्फ फिलहाल इन दोनों की बात करेंगे कि मेरा क्या था कि स्टैक के अंदर नम 1 है और नम 2 है। मैंने आपसे कहा वहाँ वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। अब ये एड्रेस कहाँ है, फ्री पूल के अंदर आपने 200 कहीं रखा है, तो नम 1 उसको पॉइंट कर रहा है, और नम 2 जब आपने बनाया उसको भी 200, ये सेम एड्रेस उसको रखेगा नम 2 को भी, यानी कि इसी को पॉइंट करेगा। अब अगर मैं नम 1 को चेंज करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक नम 1 एज 300, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे नम 1 को चेंज किया 300, लेकिन उसके साथ तो नम 2 भी था, सो कैसे ना चेंज नम 2 के साथ भी हो जाएगी ना चेंज। बात समझ आ रही है? हाँ जी। Yes, sir. अगर आप अब नम 1 को चेंज करोगे कुछ, अब फ़र्ज़ कीजिए यहाँ नम 1 नम 2 नम 3 नम 4 नम 5 9 6 सब के पास 200 था, तो वो सब किसको पॉइंट कर रहे होंगे, इसी 200 को। तो अगर अब आपने नम 4 नम 5, अगर आपने ये सारे 200 थे, फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने इस नम 1 को चेंज करना चाहा और यहाँ चेंज की, तो वो तो सब के लिए चेंज हो जाएगा, तो गलत हो गया ना, वो तो सबका वैल्यू ही ख़राब हो जाएगा। आपको इसको चेंज करने तो बाकी को क्यों चेंज कर रहे हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई साहब ये इम्यूटेबल है, नहीं कर सकते चेंज। तो फिर करोगे क्या, फिर अब एक काम करो कि जो नम 2 है
ये लिंक काटो, इसको चेंज मत करो, ये चेंज नहीं हो सकता, ये इम्यूटेबल है। क्यों इम्यूटेबल है? क्योंकि इस बंदे के साथ बाकी बंदे भी लग सकते हैं, इसलिए आप जो अगर आपको चेंज करनी है तो ये लिंक काटो, नया नंबर बनाओ जो आप करना चाहते हो और num2 को उसके साथ पॉइंट करो। लेकिन फ्री पूल में ही बनाओ, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है फ्री पूल में ही रखो, क्योंकि हो सकता है आपने कल को एक और वेरिएबल बनाया num6 और उसका भी क्या किया 300 रखा, तो इसके साथ पॉइंट होगा। यही चीज़ वैलिड थी आपके स्ट्रिंग के साथ भी। आपने नेम यहाँ पे था, पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल नेम और ये है फॉर एग्जांपल माय नेम, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स मेरे पास है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मेरा जो ये स्टैक है उसमें दो वेरिएबल्स थे, फ़र्ज़ कीजिए एक था मेरे पास माय नेम पहले और माय नेम, दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे? फ्री पूल के अंदर कहीं पर जुनैद है किसी एड्रेस पे, उसका जो भी एड्रेस है वो इसको होगा। अब आप चाहते हो कि नेम नो जुनैद नहीं, मुझे इकबाल रखना है, मुत्तकी रखना है नेम को, लेकिन हम कह रहे भाई ये इम्यूटेबल है, नहीं कर सकते चेंज, तो चेंज करो कोई मसला नहीं, लेकिन ये चीज़ इम्यूटेबल है, ये वाली चेंज जुनैद उधर ही रहेगी, ठीक है। और ये नेम किसको पॉइंट करेगा? ये मुत्तकी यहाँ पे क्रिएट करेगा एंड इट विल पॉइंट टू दैट गाय। गेटिंग द थिंग? अब दूसरा मसला है कि इस जुनैद के साथ कौन लगा था? अब ये माय नेम, फ़र्ज़ कीजिए माय नेम ने भी चेंज किया अपने आप को, उसने इकबाल कर दिया, तो यहाँ पे इकबाल क्रिएट होगा और ये इसको पॉइंट होगा। अब ये लिंक नहीं होगी, ये भी लिंक नहीं है। अब जुनैद के साथ कौन है? इकबाल। जुनैद के साथ कोई वेरिएबल है? नो सर। क्योंकि माय नेम के इकबाल कर दिया, वो नया बनाएगा अपनी लिंक, और नेम के साथ ये है वो नया करेगा। तो व्हाट इज दिस कैंडिडेट फॉर? गार्बेज कलेक्टर। वो तो चलेगा ही चलेगा, कुछ देर के बाद खुद गार्बेज कलेक्टर आएगा। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी हो रही है वो ये बंदा कर रहा है यहाँ पे, जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन जो हो रही है ना, वो ये कर रहा है। ये बता रहा है आपसे कि भाई आप ऑप्टिमाइज करो कोड को, ताकि आपकी जो अगर चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है उनको अलग मेमोरी मत दो। क्यों दोगे? और इससे बड़ी आसानी होगी, क्योंकि एक ही एड्रेस है तो एक ही एड्रेस पे काम होगा, तो एक उसका स्कोप एक ही आ जाएगा, उसके ऊपर फास्टनेस हो जाएगी, आपको अलग एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके एड्रेस स्पेस भी बचेगी। तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे आ जाएंगे, क्योंकि आपका कोड ऑप्टिमाइज, ये एक ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस ये करता है यहाँ पे, और अपने कोड को बड़ा फास्ट बनाता है। ये बात आ गई समझ में? हाँ जी, वेयर आर यू गाइस? तो हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से म्यूटेबल, तो क्या मतलब उसका हम चेंज नहीं कर सकते क्या? कैन वी चेंज दैट और नॉट? क्यों इम्यूटेबल है वो? वो एक ही एड्रेस के साथ लिंक करके रखता है। एग्जैक्टली। सो जो आपके स्टैक के अंदर होंगे वो एग्जैक्ट वैल्यूज होंगे, एड्रेसेस होंगे? एड्रेसेस एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो आज नया ट्विस्ट लग गया इसमें, ठीक है, ओके। सो आज हमने इसका प्लीज म्यूट, वहाँ से इको आ रहा है ना, प्लीज म्यूट इफ योर क्वेश्चन देन ओनली ओपन अप योर माइक्स। सो हमने आज इसका फिर से एक डिफरेंट सिनेरियो देखा, ठीक है। इसको इनफैक्ट हमें देखना चाहिए था इसके बाद प्रैक्टिकली ना, उसमें देखना चाहिए था। हम स्नैपशॉट ले सकते हैं, हम एड्रेस दे सकते हैं, हम देख सकते हैं एड्रेसेस, वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, ऐसे आपको एड्रेसेस नहीं देता। इनफैक्ट जो अपना जावा वगैरह है उसमें हम एड्रेसेस देख सकते हैं कि किसका क्या एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता हमें एक्सेस एड्रेसेस के ऊपर। लेकिन हम स्नैपशॉट ले सकते हैं, मेमोरी टैब हमारा होता है वहाँ पे डेव टूल्स में, वहाँ पे हम स्नैपशॉट ले सकते हैं और वहाँ पे हमें ये @ कोड दिखाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। कुल मिला के हमने ये कहा कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी है वो इम्यूटेबल है, वो आपको क्या है कि वो चेंज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उस बंदे के साथ एक ही वेरिएबल नहीं हो सकता, मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। सो अगर आपने चेंज कर दी वो सबको चेंज हो जाएगी, इसलिए जब आपको नई चीज़ बनानी है आपको नई मेमोरी दी जाएगी और आप उसके साथ लग जाओगे और पुराना वाला वहीं रहेगा, ठीक है ना।
तो एक तो ये था, और दूसरा हमने देखा कि कैसे मेमोरी जो आपका क्रिएशन फेज़ है और एग्जीक्यूशन फेज़ है, दो फेजेस लगते हैं, लेकिन जब फंक्शन होती है तो फंक्शन के आपके पास अपना फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अपना क्रिएशन फेज़ होता है और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का अपना एग्जीक्यूशन फेज़ होता है। तो यानी कि जितने भी आपके फंक्शंस होंगे उन सब के अपना क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन फेज़ अलग अलग होगा, और जब वो रिटर्न करेगा या ख़त्म होगा वो वापस ग्लोबल स्कोप में आएगा। इसलिए आपका जब फंक्शन होगा उसका ग्लोबल स्कोप भी होगा और उसका लोकल स्कोप भी होगा, और जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको मेन प्रोग्राम, उसका ग्लोबल स्कोप तो होगा ही होगा, और उसमें वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जो उसको एग्जीक्यूट करने में, उसकी विंडो, उसका वो सारी चीज़ें, वो फंक्शंस, वो मेथड्स जो उसमें लगेंगी, वो सब की सब उसको दी जाएंगी बिना कोड रन किए। ठीक हो गया? आई थिंक दिस हैज़ ब्रोकन द लॉट ऑफ आइस, एंड आई थिंक वी आर ऑन अ सॉलिड बेस नाउ। ठीक है ना? सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नंबर सिस्टम। मुझे ये बताया आपको कि हम ये कहते हैं कि नंबर जो हमारे पास है वो मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू सी हाउ मच इन डेप्थ यू वांट टू लर्न और नॉट, वी कैन मूव फास्टर लिटिल बिट। क्योंकि जो हमारा नंबर है वो आपका 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट आर्किटेक्चर लेता है IEEE का 674। आपको वो मैंटिसा, सिग्निफिकेंट वगैरह, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है उसमें हम पहले लेते थे नेगेटिव नंबर। कैसे लेते थे हम कहते थे सिंपल, ये है शेयर स्क्रीन ना, No, sir. जो हम कंट्रोल A, लेट मी गो ऑन अ न्यू स्केयर, जो हमारा ये होता था ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो हम कहते थे कि जो पॉजिटिव नंबर इसे हमारे पास है 4, सो 4 इज़ व्हाट इज़ दिस 4, राइट? अगर पॉजिटिव 4 है तो उसको आगे आप 0 लगाओ, और अगर नेगेटिव 4 है तो इसको आप 1 लगाओ। ठीक है ना? तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये तो दैट मीन्स दिस इज -4, दिस इज +4। तो जहाँ ये साइन बिट है इसमें आपने 0 लगाया, 1 लगाया, लेकिन इसमें फिर हमारे पास प्रॉब्लम होती थी कि हम अगर इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम इसको ऐड करेंगे, सो 0 + 0, 1 + 1 is 2, 2 is 1 0, so 1 comes here, okay? So when 1 comes here, 1 + 1 is 2 again, so it goes like this. So इसमें हमारे आंसर्स जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट लगाओ। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट देखा कि उसमें भी आंसर गड़बड़ होते थे, फिर हमने टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली किया, नेगेटिव नंबर्स टेकन इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और फिर जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट तरीका होता है, बिकॉज उनकी प्रेसिशन, उनका स्टोरेज, उसके लिए IEEE क्या आएगा 32 बिट एंड 64 बिट फॉर्मेट। ठीक है ना? वो चीज़ें आपको पता है। और जो हमारा नंबर है दैट टेक्स IEEE 674 जो आपका है उस फॉर्मेट, उसमें 64 बिट लेता है वो आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है, सो वो चीज़ें मैं शायद वीडियो दूंगा, मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं उसकी, इसके ऊपर दूंगा मैं, लेकिन वो आपको देखनी पड़ेगी, सो दैट यू विल हैव अ सॉलिड बेस। ऐसा ना हो कि आप गोटा करोगे। ठीक है ना? सो आई विल गिव सम वीडियोज़, यू विल वॉच दैट इन संडेज, हाँ, and we come back to the data types and operators and all on the Monday. ठीक हो गया? Any questions, stuff in the doubt section? Hopefully we can solve it there. Okay, Allah Hafiz.